Hello everyone, I hope you all are doing good. So let's begin our biochemistry part with the chapter your DNA, its classification and its functioning, right? So to begin with the DNA classifications, but we have to know where the DNA is situated, right? So what is the DNA working? So what is the DNA? The basic information we have to know because to understand the typical uh, statements or the complex to see the before to see the complex structures you have to know where it is been situated, right? So everybody is aware with the cell and its organelles as we have finished this part in our biology, right? So this is the nucleus, this is the entire cell and its organelles. Here are the ribosomes, mitochondria and nucleus, cytoskeleton, Golgi apparatus, endoplasmic reticulum. Everybody is where with the conformation of the cell, what is the cell organelles are present in it. So this is the portion where your DNA has been present, right? Move to our next slide. That is the cell chromosome DNA. Now the cell is controlling your genetic the DNA is controlling your genetic information, right? The behavior, the features, the characteristics with the daughter nucleus DNA is how the parental the characteristics comes in the daughter nucleus. So everything is interconnected with each other. So the yes your cells connectivity, cells chromosomes number is dependent and it's controlling so many functioning of the body. So here you can see here is your nucleus, this is the interface of the chromosome, the higher order of the chromatic folding here, right? The DNA is in the folded form here, you can see, right? So DNA, introns, spacer DNA, mobile elements, and how the nucleosome is connected here, how the cluster of the chromosomes are connected here. So this is the entire structure of the cell. Chromosomes are connected to the cell, chromosomes and the DNA, right? Move to our next slide. Why what's so special about the DNA is one of the most macro molecule imaginable. We can't see in it our naked eyes because it is in the compact form. The entire structure is a complex but it is folded and it present in the compact form. There are the four building blocks and perfectly monotonous structure. We can see how the clearly we can see the helical structure has been formed, right? So we can see the two views of double helix. This is the supercoiled, this is the most compact form of the DNA, how these macromolecules are folded with each other, overlapped with each other, right? So this is your chromatin, the entire chromatin, ठीक है? जो सेल में प्रेजेंट होता है वो इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है. दिस इज द 3D डायमेंशनल स्ट्रक्चर. नाउ डीएनए, डीएनए इज द बेसिक, आप समझ सकते हो कि ये एक बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट फॉर्म में प्रेजेंट होता है. एंड दे आर द फोर जो मेजर आपके न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट रहेंगे, ए जी सी टी. ठीक है? ए फॉर एडेनिन, सी साइटोसिन, जी ग्वानिन, टी थायमिन, राइट? इसी की डिफरेंट टाइप ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट होगी बट ये चारों ही आपके बाकी के पूरे स्ट्रक्चर को कंट्रोल करेंगे. ये फोर मॉलिक्यूल्स, फोर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कुछ इस तरह से होगी. 5' ए सी टी जी ऐसे करके, 3' एंड विद टी ए टी टी थायमन के साथ. ये दो बंदे थे जिन्होंने क्या किया था, इसका मॉडल तैयार किया था. विनर्स जो डीएनए स्ट्रक्चर था ना वो वॉटसन एंड क्रिक ने फाउंड किया था 53 years ago, राइट? सो कुछ उन्होंने ऐसे एटॉमिक एरे पैटर्न के थ्रू, ठीक है, क्रिस्टलाइन डीएनए देखा था जिसकी जिससे हमें उसका स्ट्रक्चर क्लियर हुआ डीएनए का.
डीएनए के स्ट्रक्चर में क्या है, अभी हमने ऊपर एक above we have seen the diagram, there is a double stranded molecule consist of the two polynucleotide chains running in the opposite directions, they are overlapping each other, so both strands are complementary to each other. अगर यहाँ पे A है तो इस साइड T होगा, यहाँ पे G है तो इस साइड, यहाँ पे C है तो इस साइड G होगा, ठीक है। तो वाइस वर्सा, ये मतलब दो दो पेयर्स में प्रेजेंट होंगे, बट दोनों पेयर्स क्या करेंगे, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। द बेसिस, जो इसके बेसिस है ना मॉलिक्यूल्स की, ये दो चेन्स को जोड़ के बनते हैं। ये दोनों चेन्स से कनेक्ट कैसे, किस बॉन्ड से होती हैं, डबल एच बॉन्ड से होती हैं, ठीक है। ए एंड टी एंड ट्रिपल बॉन्ड इन बिटवीन। डबल बॉन्ड किस में रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड जो बॉन्डिंग ए एडेनिन आपके थायमिन में क्या रहेगी, डबल बॉन्ड की जो ज्वाइनिंग है। ट्रिपल बॉन्ड की ज्वाइनिंग रहेगी हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साइटोसिन एंड ग्वानिन की। यहाँ तक क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दिस इज अ वेरी बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू द डीएनए, वी मस्ट टू अंडरस्टैंड हियर, ताकि आप क्या कर सकें इस चीज को, जब हम ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जो रेप्लिकेशन, वो सब चीजें हैं उसे हम इजिली अंडरस्टैंड कर सकेंगे इफ द बेसिक्स ऑफ द रिलेटेड टू डीएनए आर वेरी क्लियर टू अस, राइट। सो जो बेस पेयरिंग है वो हमें पता चल गई कि विच मेक द टू स्ट्रैंड्स कॉम्प्लीमेंट जो ईच अदर है, ठीक है। डबल बॉन्ड है ए एंड टी के बीच एंड ट्रिपल बॉन्ड है जी एंड सी के बीच, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो ये जो बॉन्डिंग है ना, ये सिंथेसिस उसकी नई कॉपी बनाने के लिए, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स पे फिर होती है। तो डीएनए का स्ट्रक्चर आप एक बार ये देख लीजिए, यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कुछ इस तरह से दिखाई देगी, ये बेस हैं जो स्टैक्स हुए हुए ईच अदर के साथ। ये जो पर्पल कलर का है ना, ये सारा एक स्ट्रैंड है, इसके कॉम्प्लीमेंट्री 5 प्राइम पे ये ऑपोजिट स्ट्रैंड है। हियर यू कैन सी, जो 5 प्राइम 3 प्राइम ये नया स्ट्रैंड होगा, इसे हम लीडिंग टेम्पलेट बोलेंगे। यहाँ पे ये रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, यहाँ पे जो डीएनए पॉलीमरेज है ना, यहाँ पे एंजाइम आके बाइंड करेगा एंड आपका ये डबल स्ट्रैंड सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये सिंगल स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड ही यहाँ से आएगा, एक पेरेंट स्ट्रैंड यहाँ से आया, दूसरा जब ये उसके बाद ये पूरे का पूरा फॉर्क ओपन हो गया, आपका डबल हेलिक्स था वो ओपन हो गया, कुछ इस तरह से हेलिकेसिस, अदर एंजाइम्स आके बाइंड होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अदर एंजाइम हेलिकेस आके बाइंड होगी, ठीक है। आरएनए प्राइमर आके जुड़ गया, तो इसने एक दूसरा और स्ट्रैंड बनाना शुरू कर दिए, जिसे हम बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड। ये देखिए, ये लैगिंग स्ट्रैंड आगे बाइंड हो गया, डीएनए पॉलीमरेज आगे बाइंड हो गया, ठीक है। दो एंजाइम्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, हेलिकेसिस एंड डीएनए पॉलीमरेज, टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ द रेप्लिकेशन। ये जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स टाइप बने हुए हैं, ये ऑकाज़की फ्रेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका एक नया लीडिंग स्ट्रैंड होगा। पेरेंट स्ट्रैंड था, सिंपली मैं आपको पहले स्टार्टिंग इसका ओवरव्यू देती हूँ। ये पेरेंट स्ट्रैंड था, ठीक है, जो पहले आपकी ऑलरेडी बॉडी में प्रेजेंट था। पेरेंटल स्ट्रैंड था, यहाँ पे इंजाइम आया, ठीक है, हेलिकेसिस, उसने ये क्या कर दिया, ओपन करना शुरू कर दिया उसे। डीएनए पॉलीमरेज, यहाँ एंजाइम आ गया, डीएनए पॉलीमरेज यहाँ आ गया, ठीक है। इसने नया स्टैंड बनाना शुरू कर दिया। यहाँ आरएनए प्राइमर आ गया, जिसने सी जी टी जो भी न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर थे वो ऐड करने शुरू कर दिए, ठीक है। इस तरह से इसने अपना एक नया स्टैंड बना लिया, यहाँ से एक अपना नया स्टैंड बन गया, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे, हर एक सेल में डीएनए प्रेजेंट होता है, बॉडी के हर एक फंक्शनिंग को कंट्रोल करने के लिए, मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करने के लिए। तो बहुत सारे डीएनए मॉलिक्यूल एक टाइम पे बन रहे हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस रेप्लिकेशन, ठीक है। नंबर ऑफ कॉपीज, सेम नंबर ऑफ कार्बन कॉपीज आपकी बन रही हैं। जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है ना, वो अलाउ करती है हर एक स्ट्रैंड पे डीएनए पे कि टेम्पलेट फॉर डीएनए रेप्लिकेशन कर सके। मैं भी आपको दिखाती हूँ, ये पेरेंटल स्ट्रैंड था, ये सिंगल सिंगल कॉपी बन गई, ठीक है। यहाँ से ब्रेक हो गया, सी टी ए जी, इस तरह से बाकी इंजाइम्स आई यहाँ पे, ठीक है, वो बाइंड होनी शुरू हो गई। तो जो लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड थे, आरएनए पॉलीमरेज आया, आरएनए प्राइमर आया, डीएनए पॉलीमरेज आया, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ के बाइंड करने शुरू कर दिए, तो आपके नए स्ट्रैंड्स जनरेट हो गए, राइट। डीएनए रेप्लिकेशन, ये समथिंग ओल्ड एंड समथिंग न्यू इन ईच होगा। ये ओल्ड स्ट्रैंड को भी साथ लेके चलेगा, एक न्यू को साथ लेके चलेगा, ठीक है। ये बहुत सारा एक तरह से जो बहुत सारी इंजाइम्स इस टाइम पे काम करी हैं। जैसे हमने फर्स्ट पिक्चर में क्या देखा कि आरएनए पॉलीमरेज आया, आरएनए प्राइमर
डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आया, आरएनए प्राइमर्स आए, उन्होंने यहाँ पे हेलिकेसिस एंजाइम्स आई जिन्होंने रेप्लिकेशन फॉर्क बनाया, ओपन किया पेरेंटल स्ट्रैंड को लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड में, ठीक है। सो वो सारी एंजाइम्स इन्वॉल्व होती हैं। नाउ डीएनए इज मेड ऑफ द टू लॉन्ग चेन्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड जॉइंड बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हमने ऊपर पहले ही डिस्कस किया था, ठीक है। अभी न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं? दीज आर कंट्रोलिंग योर प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन, मतलब जो मेजर इंफॉर्मेशन है सेल की वो कंट्रोल कर रहे हैं। जितना भी जेनेटिक कोड होता है आर कैरिड आउट, न्यूक्लिक एसिड्स आपके कंट्रोल करते हैं। ये एक तरह से लीनियर पॉलीमर होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लिक एसिड जो बेसिकली होता है ये न्यूक्लियोटाइड्स के ही लीनियर पॉलीमर्स होते हैं, उसी की कॉपीज होते हैं। नाउ न्यूक्लियोटाइड्स आर द यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लिक एसिड, ACTGU, ठीक है। ये यूरेसिल हम बाद में बात करेंगे कहाँ होता है। तो ये सारा क्या है, एक तरह से यूनिट स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियोटाइड्स आर द यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। ना न्यूक्लियोटाइड्स किस तरह, किन किन चीजों से बने होते हैं? जो आपके वो तीन कंपोनेंट से बने होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, न्यूक्लियोटाइड्स आर कंपोज्ड ऑफ थ्री कंपोनेंट्स, नाइट्रोजनस बेस, ACTG कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यूकैरियोट्स में होता है, जो प्रोकैरियोट्स है उनमें थायमिन की जगह यूरेसिल प्रेजेंट होता है। दैट्स व्हाई आई सेड कि बाद में बता रही हूँ। तो दिस इज द रीजन कि हम जब प्रोकैरियोट्स के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे मैं आपको यूरेसिल का रूल बताऊंगी। फिलहाल come to back, your components that has composed your nucleotides is your nitrogenous bases, pentose sugar, and phosphate group. Phosphate group is the backbone of your DNA structure, ठीक है। DNA, why I'm saying the phosphate is the backbone of your DNA structure, because the entire structure is ऑन प्रेजेंट ऑन द फॉस्फेट ग्रुप। जितना फॉस्फेट ग्रुप है उसी को कवर कर रहे हैं आपके बेस, उसी के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं आपकी शुगर्स प्रेजेंट है, जो उसी पे नाइट्रोजनस बेस अटैच हो रहे हैं, राइट। सो नाइट्रोजनस बेस कौन से होते हैं? ये भी आगे जाके जो ACTGU हमने जो बोले ना, ये भी नाइट्रोजनस बेस आगे दो कैटेगरीज में डिवाइड हुआ है, प्यूरिन्स एंड पिरामिड्स। व्हाट आर द प्यूरिन्स? प्यूरिन्स टू रिंग स्ट्रक्चर का होता है, जिसमें एडेनिन एंड ग्वाइनिन आ गया, ठीक है। एडेनिन एंड ग्वाइनिन आ गया जो प्यूरिन्स हैं। जो पिरिमिडिन्स हैं ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, जिसमें साइटोसिन एंड थाइमिन, थाइमिन की जगह अगर प्रोकैरियोट्स की बात करें तो यूरेसिल आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको इसके स्ट्रक्चर्स बताती हूँ। यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप देख सकती हो, इस तरह से प्रेजेंट होता है, पी के साथ डबल बॉन्ड, हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड ओ नेगेटिव ग्रुप, ठीक है। शुगर्स कोई भी हो सकती है, राइबो शुगर्स कोई भी आ सकती है। बेसिस आपकी एडेनिन, थाइमिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन ये आएंगे, क्लियर। कुछ इस तरह से इसके स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। ये आपकी प्यूरिन्स है, टू रिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। पिरामिड सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। दिस इज द ओनली वे टू रिमेम्बर दीज प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन्स डिफरेंस, ठीक है। क्योंकि आपकी जितनी प्यूरिन्स होगी वो क्या होगा, डबल रिंग स्ट्रक्चर होगा। ये ग्वाइनिन का कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, ये साइटोसिन का कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक है। मूव टू ओवर नेक्स्ट स्लाइड। अभी लीनियर पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड हमने बोला। जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं ना, ये आपके न्यूक्लियोटाइड पॉलीमर्स होते हैं। जितने भी न्यूक्लिक एसिड्स हैं, दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ योर न्यूक्लियोटाइड्स। अभी न्यूक्लियोटाइड पॉलीमराइजेशन है, ये कौन कंट्रोल कर रहे हैं? आपके फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, जो इनके दोनों को आगे जाके कंडेंसेशन रिएक्शंस होगी ना, ये ओवरलैप ईच अदर होंगे, तो वहां पे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स आर मेंटेनिंग इट्स पॉलीमराइजेशन, ठीक है। जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है ये बिटवीन, इन बिटवीन किस किस के रहेंगे? यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है शुगर पे, और एक आपकी न्यूक्लियोटाइड पे रहेगा। दूसरा फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है जो कि अनदर न्यूक्लियोटाइड पे रहेगा। हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक शुगर पे, एक न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड पे, एंड फॉस्फेट ग्रुप आपके दूसरे न्यूक्लियोटाइड पे, क्लियर। अभी पॉलीमराइजेशन क्या होती है? दे फॉर्म्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अभी यहाँ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन गई, फॉस्फेट ग्रुप आ गया, शुगर आ गया, बेस आ गया, अगेन फॉस्फेट ग्रुप आ गया जो उसे शुगर एंड बेस के साथ अटैच करवा रहा है, क्लियर। पॉलीमराइजेशन ही होगी ना ये चीज ना। तो नेगेटिव चार्ज जो शुगर है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ये शुगर है, ये एक तरह से शुगर फॉस्फेट बैकबोन का काम कर रहा है। मैंने अभी आप इनिशियली मैंने आपको बताया, द फॉस्फेट ग्रुप इज एक्टिंग एज अ बैकबोन ऑफ योर डीएनए मॉलिक्यूल, एंड इट इज ऑल्सो हैज द वेरी बिग रोल इन द पॉलीमराइजेशन, राइट। सो जो फ्री 5' फॉस्फेट है एक एंड पे, एंड फ्री आपका 3' पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, वो क्या कर रहा है? निगेटिवली चार्ज उसको कंबाइन कर रहा है। जो नाइट्रोजनस बेस है आर नॉट इन द बैकबोन,
ठीक है, आप देख सकते हो कि नाइट्रोजनस बेस बैकबोन पे नहीं है, दीज आर अटैच्ड। देखो, फ्री टू पेयर नाइट्रोजनस बेस कहीं भी आके लग सकते हैं, दीज आर द वेरी फ्री टू पेयर विद द नाइट्रोजन बेस ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, दे डू नॉट हैव द एनी specific major role in the polymerization of the nucleotides. The polymerization nucleotides has the only role by your phosphate group, by the the tuning, the setup, the connection is only between the hydroxyl group and your phosphate group.